Hello, welcome to Road to IPM. My name is Ishan Banwal. I'm a student of IIM Rohtak Batch 3, and in this video, I will share my journey to IIM Rohtak as a humanities and a DAP student. Before we begin, let's have a word from our sponsor. This video is sponsored by Unacademy. Unacademy offers live classes on various competitive exams, including IPMAT, DUJAT, NPAT, and various other BBA exams. About 2 weeks before, they started their comprehensive 1 year and 2 year live batches. This course includes live interaction sessions with experienced faculty, recorded lectures so that just in case you miss a lecture or you want to watch the lecture again, you can do that unlimited number of times. They also have doubt clearing sessions, daily sectional tests, and tons of full length mocks. They also offer free sectional tests on their website every day at 4:30 p.m. So if you are an IPM aspirant, I think you should definitely give them. It will be a very good practice for you. They also have a YouTube channel where they post academic content regarding IPM. Recently, they started a Telegram channel as well where they post regular updates about IPM along with tests and quizzes. Lastly, you can also check out their paid course on their website. The link is in the description box. You should definitely use the code RTI10 and get a 10% discount on your total cost. They have various plans ranging from 1 month to 24 months, so make sure you have a look at it once. Now, let's continue with the video. First, I want to tell you about myself. So, I am from a humanities background, as I mentioned, wherein I had subjects like history, political science, and economics. And मेरे पास 11th और 12th में maths नहीं थी. And on the top of that, I am a student with learning difficulties, or as you know, it's known as dyslexia. And while researching on how to clear the IPMAT exam, मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली, कंटेंट मिला कि एक जनरल स्टूडेंट कैसे क्लियर कर सकता है. बट इतना रिसर्च करने के बाद भी मुझे कभी समझ नहीं आया कि एक डीएपी कैंडिडेट के हिसाब से एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के हिसाब से आप आईपीमैट क्लियर कैसे करेंगे. सो इन दिस वीडियो आई विल share my step by step process and planning and strategy. So the first thing I did was research. तो मैंने बेसिकली आई एम इंदौर और आई एम रोहतक का एग्ज़ाम दिया है, IP मैट इंदौर एंड IP मैट रोहतक. एंड सबसे पहला जो मेरा स्टेप था उसमें मैंने इनके कोर्स के बारे में, इनके सिलेबस के बारे में रिसर्च किया. सो ऑब्वियसली आई एम रोहतक के लिए सिलेबस था क्वांट्स, logical reasoning and English, and for IIM Indore it was only quants and English. And after researching about this, मैंने फिर कट ऑफ्स के बारे में मैंने कट ऑफ्स की रिसर्च की, स्पेशली ऑफ डीएपी कैंडिडेट्स. एंड वो कट ऑफ्स देख के मैंने एनालाइज किए एंड फिर मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए. एंड इफ़ यू नोटिस इस साल के कट ऑफ्स में भी दोनों एग्जाम्स के कट ऑफ्स में डीएपी कैटेगरी का काफ़ी कम होता है. सो इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर, आई एम रोहतक का अराउंड 270 था फॉर जनरल एंड फॉर डीएपी इट वाज ओनली 120. सो मैंने कट ऑफ्स के बारे में इसलिए रिसर्च किया बिकॉज मैं पूरा सिलेबस पढ़ के भी नहीं गया था, स्पेशली विद क्वांट्स, बिकॉज आई हैड लेफ्ट अ पोर्शन ऑफ 11th and 12th. And the reason it's very obvious because I'm from a non-maths background, and owing to my learning difficulties I had left certain portion of some chapters. So after my research comes my SWOT analysis. So SWOT analysis में मैंने अपने strengths, weakness, opportunities और threats को analyze किया. मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इंग्लिश, बिकॉज स्कूल में मेरा स्कूल में क्योंकि इंग्लिश बहुत डिसेंट था, मेरे नंबर अच्छे आए थे. एंड मोर ओवर मेरी ग्रामर भी अच्छी है एंड माई वोकेबलरी इज ऑल्सो डिसेंट. सो इंग्लिश में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं आई एंड इट वॉज वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स. एंड लॉजिकल रीजनिंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स.
एंड आई वांट टू नो। एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी ये था कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, पहली बार पढ़ते हो उसको। सो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप समझो कि इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, देन आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग विल आल्सो बी इजी. Then coming to my weakness, it's kind of obvious. It's maths. Maths was never easy for me. आज तक easy नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होएगा. And मैंने maths में ही सबसे ज़्यादा time लगाया था preparation के लिए. And it was a little tough for me, but I managed it somehow. And so this was about my weakness. Coming to my opportunities, so उसमें था the lower cutoffs for DAP candidates. So मैंने जैसा mention किया कि DAP candidates के लिए cutoff जो है वो relatively कम होती है, एंड वहीं मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड मैंने एस्टिमेट लगाया मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, एंड मैंने उस हिसाब से ही प्रिपेयर किया. जैसे आई मेंशन, मैंने कुछ चैप्टर्स, मैंने 11th और 12th का मैथ्स टच नहीं किया था, मैंने सिर्फ 10th क्लास 10th तक का मैथ्स किया था, एंड आई थॉट इट वाज मैनेजेबल. बिकॉज अगर मैं 11th और 12th का करने लगता देन इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी, देयर वुड हैव बीन मोर प्रेशर ऑन मी. सो मैंने मैथ्स में 11th और 12th का पोर्शन छोड़ा, एंड दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. Moreover, I focused more on my strengths, which were logical reasoning and English. And the biggest threat for me was in the IPMAT Indore exam, where I had 2 sections of quants. So obviously वो एक काफ़ी बड़ा थ्रेट था मेरे लिए. इवन दो एक सेक्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट स्टिल 2 section of quants, I mean for me it was very difficult, and that was also the reason मेरा शायद नहीं हुआ IIM इंदौर में, but that's fine. Now coming to the resources that I used, so मैंने एक तो एक्चुअली कोचिंग क्लासेस, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था. इवन दो आईपी मैट के लिए मैंने एंड में खुद ही प्रिपेयर किया था, मैं उन पर उतना डिपेंडेंट नहीं था. आई ओनली यूज्ड देयर रिसोर्सेज, देयर स्टडी मटेरियल, बिकॉज दैट वाज रियली गुड. एंड वो आईपी मैट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी काफ़ी अपलोड करते थे. सो मैंने उनका ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल ही यूज़ किया है. उनके ऑनलाइन क्लासेस मैंने उतनी अटेंड नहीं की, बिकॉज मुझे अपने दूसरे स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए भी टाइम चाहिए था, एंड ऑब्वियसली उनकी 3-3 घंटों की क्लासेस होती थी. सो मैंने शुरू में थोड़ी अटेंड की टू जस्ट लर्न द बेसिक्स, बट वंस मैंने जो मुझे बेसिक्स समझ में आ गए, उसके बाद मैंने फिर उनकी क्लासेस अटेंड नहीं की. आई ओनली यूज द स्टडी मटेरियल, एंड मोर ओवर आई यूज जेन एंड मार्टिन फॉर इंग्लिश, एंड काफ़ी हेल्पफुल थी बिकॉज उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं. सो आपकी बहुत अच्छी, आप अपनी ग्रामर उससे इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड फॉर माई वोकेबलरी आई रेड द न्यूज़ पेपर डेली, मैं आर्टिकल्स पढ़ता था और जो भी मुझे नया वर्ड दिखता था आई यूज टू अंडरलाइन इट. एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, काफ़ी लोग बोल चुके हैं. सो एंड फॉर मैथ्स आई यूज्ड RS Agarwal, and for IPMAT there was a book. So this is the book, complete companion for IPM, and there was another book, this was for mocks. So this was Super 15 mock tests. ये हालांकि आप बाद में यूज़ करें जब आपको मॉक्स देने हैं. Now coming on to the strategy. So मेरी स्ट्रैटेजी के 4 फेज थे. So my first phase was December. So December में मैंने basics से शुरू किया था, especially with maths and logical reasoning, because maths की मेरी practice काफ़ी छूटी हुई थी, because 2 साल से मैंने किया नहीं था. So I had to start with the basics, and logical reasoning is obviously very new. It's a new concept, so you need to start with the basics first, obviously. Then from December to April was a phase where I had started giving 3 to 4 hours for my IPMAT preparation, and then the rest of the time I used to give for my pre-boards, क्योंकि मेरे दिसंबर में pre-boards होते हैं. And most of the time मैं या तो logical reasoning या maths ही करता था. English being a strength of mine was manageable, वो in between करता रहता था मैं.
And from December to April, so this is a very important point. सो दिसंबर से अप्रैल में मैंने दूसरे कॉलेजेस के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे. Even though my target was IP MAT, my target were these two colleges, but ये यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स ने काफ़ी हेल्प की मेरी. सो फर्स्ट रीज़न था कि एक तो बैकअप मेरा सिक्योर हो गया था. सो मोस्टली क्या होता है कि लोग जो हैं वो सीधा IP MAT या DUJAT जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड योर सिलेक्शन इज़ नॉट श्योर. सो सो IP MAT देने से पहले आई हैड सिक्योर्ड एडमिशंस इन 3 कॉलेजेस. सो जब मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गया था, आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट बिकॉज़ एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, सो देन ऑब्वियसली मैं किसी ना किसी कॉलेज में तो जाऊँगा ही, एंड आई विल नॉट हैव अ ड्रॉप ईयर. सो बैक ऑफ द माइंड मैं काफ़ी रिलैक्स था. मैंने लोगों के चेहरे देखे थे वहाँ पर, दे वर वेरी नर्वस, इवन दो आई वाज नर्वस देयर, बट मैंने काफ़ी आराम से पेपर दिया था रिलैक्स होकर. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट I wanted to build a flow for myself because as a non-math student, जब आपका मेरी और मेरे साथ तो ये स्पेशली होता है कि जब मैं मैथ्स बहुत टाइम के लिए नहीं करता हूँ, मेरा मेरा फ्लो टूट जाता है, मेरा लिंक टूट जाता है. सो वो बिल्डअप करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है. सो मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस भी इसलिए दिए थे बिकॉज IP मैट देने से पहले मैं वो फ्लो क्रिएट करना चाहता था. एंड मैंने कुछ टफ कॉलेजेस के जो मतलब मैंने एनालाइज किया था कि कुछ कॉलेजेस के आई थिंक टफ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आई थिंक क्राइस्ट एंड RC मुंजी के काफ़ी टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड आई थिंक नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी उधर होता है. सो मैंने उनके एंट्रेंस भी दिए थे और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि IP मैट कैसे देना है, हाउ डू यू कि लाइक आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए क्योंकि आपके से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, कौन सा आपको करना चाहिए. एंड बिसाइड्स दैट और मैंने 2-3 एंट्रेंस और दिए थे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हुआ. एंड दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज क्या है कि कुछ क्वेश्चंस भी IP मैट में मेरे थोड़े थोड़े सिमिलर पैटर्न के थे, सो आई वाज एबल टू डू देम. एंड अनदर रीज़न for applying in universities, other universities, was that मैंने इंटरव्यूज भी दिए. सो IP मैट का IPM इंदौर रोहतक का इंटरव्यू काफ़ी डिफिकल्ट होता है. लाइक मैंने तो IIM रोहतक का दिया था एंड इट वाज अ टफ वन, बट आई विल से दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू दैट आई हैड गिवन बिकॉज मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो इंटरव्यूज दिए थे उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, एंड how should you speak with them, and what questions they can ask you. So मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस की, एंड मुझे फिर पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. सो लाइक सम क्वेश्चंस वर लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, and why do you want to join this particular course, this particular college. सो इंटरव्यूज देते देते भी मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई थी, एंड IIM रोहतक का इंटरव्यू देते हुए आई वाज more confident than ever. Then coming on after April क्या हुआ. So after April, so May to July was a part कि मैंने अपना सारा फोकस IP मैट पे डाल दिया था बिकॉज मेरे बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे. However, ये हर साल नहीं होगा. This was an ordinary situation with the pandemic. सो मेरा सारा फोकस IP मैट पे था, एंड देन मैंने अपना सारा टाइम फिर इसको ही डेडिकेट किया था. एंड कमिंग ऑन टू माय लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट मंथ में मैंने मतलब जो जुलाई का जो बचा था जितना भी था आई थिंक 15-20 days, उसमें मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे. आई यूज्ड टू गिव 2 to 3 मॉक्स एवरी डे, एंड फिर मैं उनको एनालाइज करता था और देखता था कि कौन से टॉपिक में मुझे अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड देन आई यूज्ड टू डू दैट अगेन एंड देन गिव मॉक्स. सो ये जो लास्ट के 15 to 20 days हैं मैंने सिर्फ मॉक्स दिए और कुछ नहीं किया और उनको एनालाइज किया. दैट्स इट. एंड नाउ कमिंग टू दी इंटरव्यू पार्ट. सो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली इंटरव्यू में आपको लाइक करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी पूछेंगे, एंड देन besides current affairs they can ask you academics. आपका 11th और 12th स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए.
and you should be aware with the news and everything, and general knowledge की कुछ basic questions आप expect कर सकते हैं. And besides that, मैंने जो अभी mention किया था कि like do give interviews, do apply to other universities. Even if you want to come here and your target is IP MAT, your target is IIM Indore or IIM Rohtak or any IIM, because that gives you a very good advantage, and it surely will build your confidence. I mean, first interview शायद आपका अच्छा नहीं होएगा, but I think if you give like 3 or 4 interviews, then you will be easily able to crack any. Okay, thank you so much. I hope I was able to provide you some information about how can a humanities or DAP student, especially with those with dyslexia, can crack IP MAT. I hope this video will help you in achieving your dreams. Thank you so much.